नासिक यानी दयालु बादशाह। जाने क्या सोचकर अब्बा ने मेरा ये नाम रखा। सीलमपुर का बादशाह, जो सड़कों पर काम करता हो, जो कभी पढ़ा लिखा ना हो, जिसके आसपास बस शोर ही शोर हो। कहीं हथौड़े की ठक-ठक, कहीं मशीनों की गड़गड़। हमारे आसपास सब कुछ काला सा क्यों है? ये रेल यहाँ से रोज गुजरती है, ये मुझे यहाँ से दूर क्यों नहीं ले जाती? मन करता है मैं भी कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहाँ पर हरे भरे पेड़ हों, नीला आसमान हो, एक सुंदर सी नदी हो और नदी के पास ही हम सब बच्चे। My name really suits me because it means one that never stops. Ma says there is a clock hidden in my stomach. That's why I am the first to wake up and first to leave for school. Actually, it's because of all the fun that I have on the way. Picking up round pebbles and throwing it far in the river as far as the stone would roll is great fun. It's a game I have played since I was little. My school is the biggest in all of Kortalim. Some children come from across the river after catching the ferry. Some catch the auto rickshaw. But for most, it's a short walk away. The whole school collects in the courtyard. The morning prayer song along with the orchestra is my favorite. When we all sing together, I feel as if all of us are one big family. Monday mornings are most confusing and noisy. Everyone still seems to be in a holiday mood. The corridors can get really crowded. एक आदमी दूसरे आदमी पर लदा सा जाता है। यह है हमारा वेस्ट का बाजार। तंग गलियां, छोटी दुकानें, उनमें साइकिल, रिक्शा, बच्चे सब एक दूसरे से बचते बचाते एक साथ फंसे से और चारों ओर पुराने सामान की बू। यहीं एक छोटी सी गली में मेरे अब्बू की दुकान। पूरी दुनिया भर से पुराने कंप्यूटर, पुराने मोबाइल, टेलीफोन, ट्रांसफार्मर, बैटरी, तारे और स्विचों से भरी हुई। ठोको, तोड़ो, खींचो और निकालो, यही काम है मेरा। हफ्ते का हर दिन, दिन का हर घंटा इसी काम में निकलता है। पुराने सामान में से खरोच खरोच कर काम का सामान निकालता हूँ। पहले हाथ कट जाते थे, कभी खून आ जाता था, आंखों में जलन सी होती थी, पर अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ।
सब तरफ, हर गली, हर दुकान पर यही काम होता है। जमाल, आसिम, समीर, गणेश सब यही काम करते हैं। और यह है रोजा। पहले हमारे साथ कंचे खेलती थी, अब सारा दिन पुरानी तारें निकालती है। पहले बहुत हंसती थी, अब तो उदास सी रहती है। वेस्ट का काम कुछ ऐसा ही है, यह सबकी जान ही चूस लेता है। Old plastic wires make great decorations. Our craft teacher really knows how to make interesting things with old stuff. She says recycling is key to good living. Old newspapers, bottle tops, glass, it's all useful in the hands of an artist. And I will be a big artist when I grow up. I will design houses, schools, clothes. I dream about shapes and colors all the time, especially when Konkani class is on. My maths teacher says nothing in nature is created or destroyed. It just changes shape and form. Yes, that's true for all of us. We all become alert as soon as our maths teacher enters the class. No daydreaming is allowed in the maths class, or else my teacher will convert me into a hexagon. The acute and obtuse angles are coming out of our ears when the bell rings. The class moves towards our favorite spot, the computer lab. For all my friends, Claret, Philip, Joseph and Ramesh, computer lab is fun. We play games, draw cards, make pictures. When we first saw it, it seemed like a magic box. It played music. It showed films. My friends and I dream when we all grow up, we will have a lot of money. Then we will not have to share time on the computer. My teacher says computers are nothing but a big powerful toy that does work for us. खिलौनों में बादशाह है लट्टू। बस जेब से निकालो, रस्सी मरोड़ो और दाग दो। जब स्विच तोड़ तोड़ कर थक जाता हूँ, तब यहाँ नाले के पास आ जाता हूँ। यहाँ कंप्यूटर और गिलास ट्यूब की दुकानों में बहुत से बच्चे काम करते हैं। दिन के खाने के बाद सब बड़े लोग उगते हैं और हम बच्चे लट्टू फेंकते हैं। पहले क्रिकेट खेलते थे, पर कांच की ट्यूब टूटने के बाद बंद कर दिया। बहुत डांट पड़ी थी अब्बास को उसके मालिक से। वैसे भी हमारी मार्केट में हमारे खेलने की जगह कम ही है। कहीं कंप्यूटर की ट्यूब का कांच फैला रहता है, कहीं तारों और कंप्यूटर के पार्ट्स को साफ करने के लिए एसिड के बड़े बड़े ड्रम पड़े रहते हैं। मार्केट में बहुत से बच्चे काम करते हैं। आए दिन किसी ना किसी को चोट लगती रहती है। फिर यहाँ डॉक्टर भी कहाँ है, बल्कि खुद ही चोट खाने पर बच्चों को ही डांट पड़ती है। Our teacher Sergio never scolds us. He is from Spain and he has come all the way from there to teach us. That too
for free. He told us that our computers are not new. Just like I gave my old dolls and toys to my neighbor's son to play with, some people give their old computers to others. This is called second-hand use. Sergio told us that some rich people in America and Europe have sent us these second-hand computers so that we could learn on them. They take out all the good parts from old computers and create a new one. Well, almost a new one. Anyway, I don't mind so long as I can get a computer and get to make my drawings on it. That is all that I want. There are many children in our class who took a long time to learn, but finally they have also started enjoying this new toy in our life. Sergio taught me how to make drawings on the computer. The internet is another big world where we can get any information we like. I check out names and habits of different animals. My computer is my window to the world. उंगलियां थक जाती हैं ठोकते ठोकते, नाखून पीले और लाल से हो जाते हैं। मुझे तो यह कंप्यूटर, यह इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसी भूत से कम नहीं लगते। ऐसा भूत जिसके मुंह से जहर ही जहर निकलता हो। अज़हर मियाँ हमारे बाज़ार के सबसे पुराने डीलर हैं। उनके वर्कर हर तरह के सामान का ठेका लेते हैं, जैसे पुराने कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविज़न, फ्रिज या एयर कंडीशन। घरों, दफ्तरों, सरकारी ऑफिस और कंप्यूटर बनाने वाले सबके यहाँ का पुराना और सेकंड हैंड सामान हमारी मार्केट में आता है। पर सबसे ज़्यादा सामान आता है बाहर के देशों से, क्योंकि बाहर के देशों में कंप्यूटर ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे पहले फेंके भी जाते हैं। जैसे हम लोग कमीज़ बदलते हैं, वैसे वो हर 2 साल में कंप्यूटर बदल देते हैं। अज़हर मियाँ के 2 भाई और बहुत से बिजनेस पार्टनर चेन्नई शहर में रहते हैं। वहीं समुद्र जरिए से आता है बहुत सा ई वेस्ट। अज़हर मियाँ ने मुझे बताया कि दुनिया भर के अमीर देश इन पुराने कंप्यूटरों से डरते हैं, क्योंकि किसी बम की तरह इनमें बड़े जहरीले मसाले भरे रहते हैं। अपने देश में फेंकने से अंग्रेज़ों की सेहत खराब होगी, मिट्टी पानी में जहर जाएगा। सो वो लोग इन पुराने कंप्यूटरों को जहाज़ों में भरकर हमारे जैसे गरीब देशों में भेज देते हैं। अज़हर मियाँ कहते हैं कि हज़ारों कंप्यूटर हमारे देश में बड़े बड़े डिब्बों में भरकर आते हैं। बड़े बड़े डीलर इस माल को खरीद लेते हैं। सबसे ज़्यादा माल आता है अमेरिका से, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बनते हैं और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर फेंके जाते हैं। कनाडा, अरब देश, यूरोप, सब जगह से पुराना ई वेस्ट हमारे समुद्री शहरों में आता है और यहाँ से पूरे देश में फैलाया जाता है। अब्बू ने मुझे बताया कि हमारी सरकार ने कानून बनाया है कि पुराने कंप्यूटर हमारे देश में आ सकते हैं अगर वे गरीब बच्चों और स्कूलों के इस्तेमाल आ सके, मगर खालिस ई वेस्ट की एंट्री मना है। यहीं से शुरू होती है धांधलेबाजी। कहा यह जाता है कि ट्रकों से गांव के स्कूलों में पुराने कंप्यूटर भेजे जाएंगे, पर असलियत में 90% माल चला जाता है बड़े बड़े शेड्स और वर्कशॉप में। यहाँ से माल गुलसा कर दिया जाता है। बड़े बड़े दरवाज़ों के पीछे छिपी फैक्ट्रियों में कंप्यूटरों को तोड़ा जाता है। शीशों और प्लास्टिक के अलावा लोहा, तांबा, पीतल, सोना और चांदी जैसी चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं। इन सबसे डीलरों को तो पैसा मिलता है, पर वो आदमी और बच्चे जो तोड़ाई करते हैं वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहते, बस कुछ ही साल में ख़त्म हो जाते हैं। कहते हैं एक कंप्यूटर में 50 आदमियों को मारने का मसाला होता है।
Computer waste and its effects was the holiday project that we all had to do. Meenakshi's project was the best in the class. Today the main problem is the electronic waste problem. As you can see in this charts, She explained that computers are a good tool for learning, but if they are dumped without proper care, they can cause terrible pollution in the environment. Different parts of computers contain chemicals like lead, cadmium, mercury, and barium. If old computers are not dumped with care, these chemicals can leak into the soil. From there, it can enter our food and water, and then our bodies. These chemicals can cause terrible diseases of heart, lungs, and brain. So, instead of throwing old computers, we should reuse them by giving them in charity or take out good parts and replace them to make new computers. Throwing computers can create a mountain of waste that can harm us all. सपने में कभी कभी आते हैं, साफ हवा में झूमते पेड़, पेड़ों की पत्तियों में से झलकती चमकती धूप, खुली हवा और उसमें उछलती मेरी पतंग। धुएं और शोर शराबे से बचकर आज मैं छत पर आ गया। काश मैं भी अब्बू की तरह किसी गांव में बड़ा हुआ होता। हम अमीर नहीं, गरीब सही, पर कम से कम साफ हवा, अच्छा पानी और नीला आसमान तो मिलता गांव में। नीचे अब्बा आवाज लगा रहे हैं। मैंने झट से पतंग नीचे खींच ली। सारे मांझे में उलझन पड़ गई, ठीक मेरे दिमाग की उलझन की तरह। हम बाहर के देश का कूड़ा अपने देश में क्यों ला रहे हैं? हम दूसरे का बनाया जहर अपनी मिट्टी में क्यों घोल रहे हैं? हम गरीब सही, पर क्या बीमार होकर मरना ही हमारी किस्मत है? क्या हल है इस मुश्किल का? My music teacher says playing the violin is a very challenging thing because unlike most other instruments where both hands move together, in the violin, two hands have to move in opposite directions. But if we can master two different directions, we can master the melody and the music. This is so strange. Sergio, my computer teacher, also said the same thing. He said, if your country has to become powerful, it has to move in two directions. On the one hand, all children must get an opportunity to learn technology. So we should welcome ideas and technology from other countries. But we must not let India become a dustbin of old e-waste. Now, why are all things in life so complicated? मेरी पतंग हमेशा तारों में फंसकर फट जाती है। इतनी पतली गलियों में हवा तो आती नहीं, पतंग उड़ेगी कैसे? घरों की छोटी छोटी खिड़कियाँ और खिड़कियों के पीछे बंद बच्चे। नुसरत और उसकी माँ नाली के पास बैठकर रोज तारे और बैटरी का सामान तोलती है। सब में से धुआं, बदबू और कालिक निकलती है। नुसरत मेरी तरफ देखकर हमेशा हंसती रहती है। इसके अब्बा भी यही काम करते थे, अब नहीं रहे। फेफड़ों की बीमारी से मर गए। उनकी आंखों और खाल पर भी बैटरी का चूना लगा रहता था। हर रोज नुसरत के सामने से निकलता हूँ और सोचता हूँ, क्या इसे कोई इस काम से रोक नहीं सकता?
कोई इसे बचा नहीं सकता। मेरे साथ की दुकान में काम करने वाला महेश लोहे और लैट के चूर्ण में लिपा रहता है। आजकल खांसने भी लगा है। कब तक इतनी फुर्ती से काम कर पाएगा? कुछ हफ्तों पहले इसके हाथ और पांव पर फोड़े हो गए थे। डॉक्टर बाबू ने कहा, यही काम करना है तो हाथों में दस्ताने पहनो, चश्मा लगाओ, नाक पर फिल्टर पहनो। पर इस सब का किसको पता है? डॉक्टर कहता था ऐसा ही चलता रहा तो कैंसर भी हो सकता है। जानिए ये कैंसर क्या वाला है। मुन्ना कीलों और तारों के बीच सोता रहता है। जब कुछ चुप जाता है तो बहुत देर तक रोता है। इसकी माँ कहती है, अभी तक तो कुछ बोलता नहीं, कहीं दिमाग भी सही है या नहीं। सब मुन्ना के बोलने का इंतजार कर रहे हैं, तब पता चलेगा कि सब ठीक तो है। इकबाल एसिड में घोल घोल कर सब पिघलाता रहता है। प्लास्टिक के पुर्जों में से तांबा और लोहा निकालता है। हर चीज एसिड में पिघल जाती है। तो क्या इकबाल के हाथ ठीक रह पाएंगे? हर शाम काले धुएं की बहुत सी धारें हमारी हर गली में जल उठती हैं। आंखें जलती हैं, पर तारों में से तांबा और सोना निकालना ज्यादा कीमती है। वेंकट का पूरा परिवार एक साथ बैठकर कंप्यूटर के हर हिस्से में से माल निकालता है। सबके हाथों की चमड़ी छिल गई है। कहते हैं हमारा सारा धंधा कानून के खिलाफ है, तो फिर पुलिस वाला यहाँ से घूम फिर कर चला क्यों जाता है? आज हमारे पड़ोसी शौकत मियाँ के घर पोता हुआ है। वो मुझे खास दावत दे रहे हैं। आखिर मैं उनकी दुकान के ठीक सामने काम करता हूँ और कभी कभी जब उनके सिर में दर्द होता है तो चंपी भी कर देता हूँ। शौकत मियाँ मुझे अपना बेटा मानते हैं। मुझे रोज अखबार की खबरें पढ़कर बताते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अभी हाल ही में किसी बाहर के देश से वेस्ट आया। उसमें बड़े बड़े तोप और कारतूस भी निकले। जब बच्चे इस लोहे के सामान पर काम करने लगे तो बस एक पुराना तोप चल गया। 12 बच्चे वहीं ख़त्म हो गए। भाई बहुत डेंजर हो गया है वेस्ट का सामान तोड़ने में। The shell dance will be the main item in our annual day function. At last, time for tiffin with my best friend Claret. She is very close to me and she knows all my secrets. We both have decided that when we grow up, we will go to a big city. A city with a lot of tall buildings, fast cars, lots of shops lit up with toys, clothes, bags and lipsticks. We will live on the top floor and we will become famous one day. But for now, I'm just happy to play with my sister in the waterfall near our house. The cold, cold water is filled with small weeds, colorful pebbles, and even small fishes. पानी का टैंकर क्या आता है? हमारे मार्केट में सब ऐसे भागते हैं जैसे कोई सोने की अशर्फिया बांटने आ गया हो। सब बच्चों को स्क्रैप का काम छोड़कर पानी भरने के काम पे लगा देते हैं। पानी से ही तो धुलता है स्क्रैप और पुराना माल, पर धुल धुल कर नाले का पानी भी लाल सा हो गया है। सब बच्चे कहते हैं
अगर एक बार इस पानी से नहा लो तो ऐसी शक्ल हो जाएगी कि अमरीश पुरी भी डर जाएगा। My first fashion show will have big computer screens that will flash my latest designs. Racks. जुम्मे के दिन हमारा ई वेस्ट का बाजार बंद रहता है। थोड़ा सा क्रिकेट खेल लेता हूँ आज। मेरे छोटे भाई बहन अली और अस्मा स्टैंड पर बैठे हैं। आज दिखा दूँ इन दोनों को भी, इनका बड़ा भाई किसी सचिन और सौरभ से कम नहीं। नया पैंतरा अपनाना पड़ेगा, नहीं तो अस्मा और अली हंसेंगे मेरे ऊपर। फिर अम्मा भी कहेगी, आसिफ बादशाह तुम तो खच्चर निकले। देखा, बाय गॉड, अगर वेस्ट के धंधे में ना फंसा होता तो इरफान पठान होता। When I grow up, I will create a computer that will be like a Lego toy. Anyone can open and close it or make new models without throwing a lot of waste. But these are just my dreams.